Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for Python programming. In this video, we are going to do a program to check whether a string is palindrome or not. Before starting with the logic of a program, let me tell you what is a palindrome string. A string is said to be a palindrome string when the original string and its reverse both are equal, then that string is said to be the palindrome string. You can take an example, for example, the name Naman. The spelling of Naman is N-A-M-A-N. Let me just write it here. Suppose I am writing the name here, Naman, N-A-M-A-N. And when we will reverse the string, means we will write it in the reverse order. What will be spelling? N-A-M-A-N. So original string और उसका reverse both are equal, so that means this string is our palindrome string. जो भी हमारी string होगी वो और उसका reverse, if both are equal, तो that means वो हमारी क्या है? Palindrome string. Now what will be the logic to be used behind this? आपको एक original string given है, आपको उसका क्या find out करना है? Reverse. And as you know, to solve a particular problem, there are multiple methods to solve that. We will discuss one or two methods. You can do with any other method with this or except this, but your logic should be correct. Let's execute it on my Python ideally. As you can see, I have opened my Python ideally. So we will make a program in Python to check whether the string is palindrome or not. It is a good practice to write the comment also, so that later on when you will open this file, you will get to know what is the logic behind this, कि किस चीज का program है. So let's start now. First of all, the very first thing, हमें क्या चाहिए? यूजर से एक string enter करानी है. ठीक है, तो I am taking it in the variable original and I will prompt the user to enter a string. Whatever the string the user will enter, it will store in the variable original. ठीक है, now I am taking a variable reverse. ठीक है, let's open the Python shell first. See, suppose I am taking the string here with name Naman. ठीक है, and if I will write, use the slicing operation. ठीक है, तो it will reverse the string. Means अगर मैं starting और ending value skip करके यहाँ पर step value में -1 लूंगी, तो it is reversing the string. As you can see, end में मेरा क्या है? Small n, तो वो यहाँ पर किस में आ गया? First number पे. उसके बाद क्या है? A. और अगर मैं कोई और string ले लूं, suppose I am writing Python, तो when you will reverse using slicing operation, you will get its reverse. So that means one method to reverse the string is to use the slicing operation. So here we can write original. इससे क्या होगा? स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू नहीं दी, स्टेप वैल्यू मैंने क्या दी है? -1. सो इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम द एंड, कि जो आपकी एंड से है उसमें 1 by 1 कैरेक्टर वो क्या करेगा? डिस्प्ले. ठीक है, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो ऑफ माय स्ट्रिंग स्लाइसिंग, I will provide you the link of my playlist of string manipulation in description also. There you will get in detail how to do the string slicing. So now अब एक बार print करा कर देखते हैं कि reverse में हमारा क्या print हो रहा है. To do a program, it's better कि आप step by step उसका क्या करें? Execution. Let's save this file now. ठीक है, now I have entered the string Python
एंड यू कैन सी कि जो मेरा रिवर्स है वो करेक्ट फाइंड आउट हो रहा है। अब तो बस मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, क्यों मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरे पास आ गई और उसका रिवर्स भी मेरे पास आ गया। नाउ जस्ट आई हैव टू कंपेयर। और किस किस को कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल को और किससे बेटा, रिवर्स से। इफ बोथ द ओरिजिनल एज वेल एज इज रिवर्स both are equal, so that means your string is palindrome. We will print this message, otherwise string is not palindrome. Let's execute on both palindrome as well as non-palindrome strings. First I will write madam. Let's write small m first. ठीक है, अब आप इसको रिवर्स करोगे तो इट विल बी द सेम, सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रिंग इज अ palindrome. As you know, Python is my case sensitive language, so when I will write this, so it will display string is not palindrome, because the reverse जो होगा उसमें आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल M. Let's do this with another method. This was first method. Now let's do this with another method. This is the multi-line command symbol. Python interpreter will ignore this. Now in second method, what we will do, we will find the reverse without using the slicing operator. This statement will be same. First user will enter a string. अब देखो यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा किस वेरिएबल में आ गई, वो ओरिजिनल में। ठीक है, नाउ अब मैंने रिवर्स नेम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली बेटा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैंने जो स्ट्रिंग एंटर की है, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी स्ट्रिंग में है पाइथन। ठीक है, अब ये आपका 0 इंडेक्स पर है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंडेक्सिंग है। तो व्हाट विल आई डू कि मैं पहले 5th इंडेक्स से कैरेक्टर को पिक करूंगी और उसको कहां पर ऐड कर दूंगी, रिवर्स वाली स्ट्रिंग में। तो दैट मीन्स जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग का लूप है वो कहां से लगेगा, लेंथ से लेकर के -1 तक, और स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -1। उसके बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू पिक करूंगी, तो उस पर जो एलिमेंट है वो मैं स्ट्रिंग में क्या कर दूंगी, कंकैटिनेट कर दूंगी। दिस लॉजिक वी विल यूज। तो फॉर आई in original, this time we will use the range function. Length of original, जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ है, -1। ठीक है, -1 क्यों लेंगे, क्योंकि अगर सपोज यही मेरी स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज मैडम। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग कहां से, 0 1 2 3 4, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए, 5। तो इसीलिए मैं लेंथ में से क्या करूंगी, -1, और कहां तक चलना, रिवर्स चल रहा है, -1, और स्टेप वैल्यू भी क्या होगी, -1। और जो मेरी स्ट्रिंग है रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस ओरिजिनल आई। इसको देखो कैसे होगा, सबसे पहले सपोज मेरे पास यही स्ट्रिंग है मैडम। ठीक है, एक हमने स्ट्रिंग ली MADAM। इसकी इंडेक्सिंग जब आप करोगे तो दिस विल बी एट इंडेक्स 0 1 2 3 एंड देन 4। तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर्स हैं, तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, 5। और मेरा लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ -1, 5 -1 4। ठीक है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, रिवर्स प्लस ओरिजिनल आई की वैल्यू क्या है, 4, और रिवर्स में क्या है, अभी कुछ नहीं है। मैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकती हूँ यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर। रिवर्स में मेरी क्या है बेटा, फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस ओरिजिनल ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 4, ओरिजिनल ऑफ 4 दैट इज m। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो मेरी जो r वाली स्ट्रिंग है उसमें क्या आ जाएगा, m। नेक्स्ट टाइम पर वैल्यू ऑफ i विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, 4 - 1 3, क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या है मेरी -1।
तो जब मैं 3 लूंगी तो 3 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है, a. तो व्हाट इट विल डू, r इक्वल्स टू m प्लस a. तो इट विल कंबाइन दिस और वो क्या बन जाएगा, m a. इस तरीके से हम एक एक स्ट्रिंग पिक, एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे लास्ट से लेकर एंड तक. तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स. अब हम पहले रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कराकर देखेंगे कि वो करेक्ट प्रिंट कर रहा है या नहीं. ठीक है, अब रिवर्स प्रिंट कराएंगे. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. एंटर अ स्ट्रिंग. लेट्स सपोज आई हैव एंटर्ड स्वाति. तो एज यू कैन सी कि ये करेक्ट मुझे रिवर्स प्रिंट करके दे रहा है. अब तो आपका काम और भी इजी हो गया. ओरिजिनल स्ट्रिंग भी है और रिवर्स भी है. नाउ यू जस्ट हैव टू कंपेयर द स्ट्रिंग. इफ ओरिजिनल इक्वल्स टू रिवर्स तो दैट मीन्स योर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. If it is not equal to, so that means your string is not palindrome. ठीक है, let's suppose I am entering the name Nitin. तो as you can see, जो इसका reverse होगा that will also be Nitin. So it is displaying the string is palindrome. If I will enter suppose programming, इसका reverse equal नहीं है, तो it will show your string is not palindrome. ठीक है, हमने first method में क्या करा, यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन उसका क्या फाइंड आउट करा बेटा, रिवर्स. और सेकेंड मेथड में यूजिंग रेंज फंक्शन हमने लास्ट से 1 by 1 कैरेक्टर पिक करके स्ट्रिंग में क्या कर दिया, उसको कंकैटिनेट यूजिंग दिस प्लस सिंबल. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates for my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.